So if power is 20, we can use De Moivre's theorem. So let us convert this in polar form. Polar form में हम कैसे convert करेंगे? Let us find out r. R is nothing but under root a square, that is 1 plus b square, that is 3. So 1 plus 3 4 हो गया, उसका under root 2 हो गया. Now what is theta? Theta is nothing but देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है? माइनस प्लस, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट है. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या फार्मूला होता है हमारा? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b upon a. So it is root 3 upon minus 1. So this comes to be pi minus tan inverse of root 3. So that is pi minus pi by 3 and it is 2 pi by 3. ठीक है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने. सो z कितना है? अब z इज इक्वल टू व्हाट? r, दैट इज 2 इन ब्रैकेट cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. So that is the value of z. We have to find out z raised to 20. So z raised to 20 कितना होगा? It is nothing but 2 raised to 20 in bracket cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3 raised to 20. Clear? And this is equal to, now say this is 2 raised to 20 as it is according to the options. Now what is cos 2 pi by 3? Cos 2 pi by 3 is nothing but minus 1 by 2. What is sin 2 pi by 3? It is plus root 3 by 2 I. अब कैसे निकाला हमने? So 2 pi by 3 is nothing but pi minus pi by 3. देखिए मैं यहाँ पर निकाल कर बताता हूँ आपको. अलाइड एंगल का एप्लीकेशन है. नए लोगों के लिए थोड़ा सा मैं 2 मिनट यहाँ पर ले रहा हूँ. एप्लीकेशन ऑफ अलाइड एंगल. हाउ टू फाइंड आउट cos 2 pi by 3. Now see cos 2 pi by 3 is nothing but cos of pi minus pi by 3. ठीक है, so this is 3 pi minus pi, that is 2 pi by 3. So 2 pi by 3 को हमने लिख दिया pi minus pi by 3, which is equal to, now see pi is there, so cos remains cos pi by 3. Clear? And pi minus theta is second quadrant. Second quadrant में cos नेगेटिव होता है, so it is minus cos pi by 3, which is equal to minus cos pi by 3, that is cos 60 डिग्री 1 by 2 होता है. और साइन जो है पाई माइनस पाई बाय 3, इट इज नथिंग बट पाई है, तो साइन रिमेन्स साइन. क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा का क्वाड्रेंट सेकंड होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आपका आंसर पॉजिटिव है. एंड हाउ मच इज साइन 60 डिग्री? इट इज रूट 3 by 2. क्लियर? सो हमने यहाँ पर cos 2 pi by 3 मतलब माइनस 1 by 2, sin 2 pi by 3 मतलब रूट 3 by 2. रेस टू हाउ मच? रेस टू 20. ठीक, so you can check with your options, and this is option D. ठीक है, so this is your answer. अभी आप सबको क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में मिल रहे होंगे. एक्चुअली मेरा टेक्स्ट बुक गलत हो गया था, मैं जो नोट्स रेफर कर रहा था उसमें से क्वेश्चंस वो अलग बुक था. ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 17. And that is, if 2c7 pi by 2 is one of the values of z raised to 1 by 5, then z is equal to how much? ठीक है, so z raised to 1 by 5 का one of the values, कोई भी एक वैल्यू जो है, it is 2c7 pi by 5. It means what? This can be written as 2 in bracket cos of 7 pi by 5 plus I sin of 7 pi by 5. So this is one of the root of z. Okay, so this is one of the root of z. 2 is 7 pi by 5. So we can write it as z raised to 1 by 5. That is fifth root of z is 2 is 7 pi by 5. Writing in this format. Clear? So therefore z is equal to how much? Taking fifth power on both sides, it becomes how much? 2 raised to 5
in bracket cos of 7 pi by 5 plus I sin of 7 pi by 5 ब्रैकेट रेस टू 5। ठीक है, जब हम बोलते हैं वन ऑफ द वैल्यू दैट इज इट इज फिफ्थ रूट है 2 6 7 पाई बाय 5, हमने इसको फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने फिफ्थ पावर लिया दोनों साइड का। ठीक, यहाँ पर जेड रेस टू 1 बाय 5 है, दोनों साइड का फिफ्थ पावर लिया तो जेड रेस टू 1 बाय 5 का फिफ्थ पावर जेड हो जाएगा, 2 रेस टू 5 होगा, ब्रैकेट रेस टू 5 होगा। अप्लाइंग डी मोरस थ्योरम 5 आपका नीचे आ जाएगा, सो इट बिकम्स हाउ मच 2 रेस टू 5 इन ब्रैकेट। अब जब 5 नीचे आएगा इसके साथ तो 5 और 5 कट हो जाएगा, इट विल रिमेन cos 7 पाई प्लस I sin 7 pi which is equal to 2 raised to 5. Now see this is cos of odd pi। आप हमेशा odd pi even pi, odd pi by 2 even pi by 2 इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम odd pi even pi की अगर बात करें तो दिस इज odd pi मतलब कहां पर होगा, यहाँ पर होगा 7 pi, दिस इज 1 pi 3 pi 5 pi 7 pi, कल हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर cos की वैल्यू कितनी होती है, इट इज -1 और sin की वैल्यू होती है यहाँ पर इस पोजीशन पर 0। सो योर आंसर इज व्हाट -32। Let us take next question, and that is question number 18. Question number 18 is if 1 omega omega square are the cube roots of unity, then we have to find out value of 1 upon 1 plus 2 omega plus 1 upon 2 plus omega minus 1 upon 1 plus omega. So you have to find out value of this. ठीक है, let us solve this. Now this is equal to, अब देखिए इन दोनों को एक साथ करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इट इज 1 plus 2 omega into 2 plus omega, so this is the LCM by cross multiplication method। 2 plus omega into 1, so it is 2 plus omega, and 1 into this, so it is 1 plus 2 omega, cross multiplication कर दिया, minus 1 upon, now see 1 plus omega is nothing but minus omega square using properties of omega। 1 plus omega minus omega square होता है, so this comes out to be, न्यूमरेटर में देखिए 2 plus 1 that is 3 plus omega plus 2 omega that is 3 omega। डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो एक तो हो जाएगा 1 into 2 that is 2, ठीक है, प्लस दिस 2 omega into omega that is 2 omega square, प्लस थर्ड टर्म क्या होगी देखिए 2 omega into 2 that is 4 omega और एक ओमेगा, सो इट कम्स आउट टू बी 5 ओमेगा, माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू, नाउ अगेन टेकिंग एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ दीज। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम फिर से कर लेते हैं हम। सो एलसीएम क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट 2 plus 2 omega square plus 5 omega, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, सो ओमेगा स्क्वायर इनटू दिस, सो इट इज 3 omega square प्लस 3 omega क्यूब प्लस 1 से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट इज 2 plus 2 omega square प्लस 5 omega। नाउ दिस इज नथिंग बट 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर में देखिए 3 plus 2 5 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 ओमेगा क्यूब इज नथिंग बट 3 क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, एंड प्लस 5 ओमेगा, डिनोमिनेटर जो है
ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट। नाउ न्यूमरेटर में देखिए 2 + 3 5 हो गया, प्लस 5 ओमेगा है, प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर है और ब्रैकेट है। न्यूमरेटर में 5 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा एज इट इज। नाउ दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 0, क्योंकि ये आ गया 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज 0, सो योर आंसर इज व्हाट 0। ठीक, okay, so is there any doubt up to this point? ओके पूर्वा वीडियो क्लियर है अभी? Okay, so let's take next question, that is question number 20. If z is equal to cos pi by 3 minus I sin pi by 3, then z square minus z plus 1 equal to how much? Okay, so we know the values of cos pi by 3 and sin pi by 3. कितना होता है cos pi by 3 1/2, sin pi by 3 √3/2 I. Clear? Now therefore what is z square minus z plus 1 is equal to, so z square मतलब हो जाएगा, अब देखिए इस जो है 1/2 माइनस √3/2 I, यहां से अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा एक्सपेंशन ना करना पड़े। ये नंबर आपको ओमेगा जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ओमेगा में क्या होता है बीच में साइन प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन ये वाला साइन हमेशा माइनस होता है, तो हम यहां से माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में हो जाएगा व्हाट -1/2 प्लस √3/2 I। क्लियर? हमने इन दोनों में से माइनस साइन अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हो जाएगा -1/2 प्लस √3/2 I, एंड दिस ब्रैकेट इज नथिंग बट ओमेगा, so this is माइनस ओमेगा। अब हम आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए जेड स्क्वायर मतलब माइनस ओमेगा का स्क्वायर, वो तो होगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस जेड दैट इज माइनस ओमेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ओमेगा एंड प्लस 1। नाउ दिस इज नथिंग बट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन 21। The locus represented by mod of z minus 1 is equal to mod of z plus I. Okay, so you have to find out locus of this. अब z is equal to हमें x plus iy लेना होता है, so it becomes what mod of z मतलब हो गया x plus iy -1 इक्वल टू मॉड ऑफ जेड मतलब हो गया x प्लस आई वाई प्लस आई। ठीक, हम दोनों साइड का स्क्वायर भी कर लेते हैं ताकि मॉड मतलब अंडर रूट में होता है, तो स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो क्या होगा अंडर रूट निकल जाएगा। अब यहां पर देखिए फर्स्ट पार्ट में मॉड हम कैसे निकालते हैं अंडर रूट, तो अंडर रूट तो निकल गया, स्क्वायर कर दिया, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, यहाँ पे रियल पार्ट x माइनस 1 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर दैट इज इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी होगा रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट x है तो x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट कितना है यहाँ पर, अगर हम यहाँ से i कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा y प्लस 1 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, let us simplify this further. This is x square minus 2x plus 1 plus y square, राइट हैंड साइड पर होगा x square plus y square plus 2y
प्लस 1, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट हो गया, ठीक है। और क्या कट होता है देखिए, प्लस 1 भी दोनों साइड से कट हो गया। हम माइनस 2x उधर लेकर जाते हैं तो हो जाएगा प्लस 2x, 2y ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 0, सो दिस इज नथिंग बट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और x प्लस वाई इक्वल टू 0 is a line passing through the origin, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये लाइन इस तरीके से होती है, ठीक। ये लाइन आपको इस तरीके से मिलेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दैट इज द ऑप्शन, कौन सा है इसका देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? लेट अस टेक 22nd क्वेश्चन। चेक करते हैं। पहली बात तो सब लोग तो यहां पर तो मुझे प्रेजेंट दिख रहे हैं, लेकिन क्या सही में प्रेजेंट है? लेट्स चेक। आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। यस अपेक्षा, यस मंदार का क्या कहना है? ओके आंचल, अपेक्षा आंचल गुड। मंदार आपने भी बोला एंगल्स, बट व्हाट डू यू मीन बाय एंगल्स? ठीक है, क्लियर। तो चलिए, यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बट रेक्टेंगल में हो जाएगा 90 डिग्री और इधर 90 डिग्री नहीं होगा। क्लियर। अब और एक चीज है, रोम्बस और स्क्वायर में, रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? रोम्बस और स्क्वायर, यस मंदार करेक्ट। रोम्बस और स्क्वायर का बताइए, माइक ऑन कर कर भी बता सकते हैं। यस, द सेम डिफरेंस। रोम्बस के जो होते हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर बोथ आर हैविंग ऑल द 4 साइड्स इक्वल, बट उसमें आपका 90 डिग्री नहीं होता है रोम्बस में, इट इज नॉट कंपल्सन, ठीक है। लेकिन स्क्वायर में हमेशा 90 डिग्री होता है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस दैट इज लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। तो अगर हम चारों साइड्स की लेंथ निकाल लेते हैं तो हमें आइडिया थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक। लेट अस फाइंड आउट लेंथ ऑफ ऑल द 4 साइड्स। सो PQ जो होगा, PQ, व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस PQ इज गिवन बाय मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। अब आप Z1 Z2 जब बोलते हो तो आप किधर से, मतलब अगर मैं इसको Z1 बोलता हूं तो ये Z2 हो जाएगा, अगर मैं इसको Z1 बोलता हूं तो ये Z2 हो जाएगा। सो डिस्टेंस मतलब मॉड होता है। तो आप यहां से, मतलब अगर हम बात करें डिस्टेंस की, ठीक है। सो जलगांव टू मुंबई अगर 400 किलोमीटर होगा तो मुंबई टू जलगांव भी 400 ही होगा। क्लियर? बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप यहां से इधर जाइए, यहां से इधर आइए, एक ही चीज होती है। तो हम लेते हैं मॉड ऑफ PQ, अगर जो डिस्टेंस होगा PQ, इट इज मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, दैट इज द फार्मूला। और Z2 माइनस Z1 मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस करना है हमने। अब जब हम माइनस करते हैं तो रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन अलग होता है, इमेजिनरी का सब्ट्रैक्शन अलग होता है। तो रियल का सब्ट्रैक्शन देखिए, इट इज 4 माइनस 1 दैट इज 5, ठीक है। लेकिन एक बार अगर आपने इधर से माइनस किया तो फिर दूसरा भी इधर से ही करना है, ठीक है। सो 4 माइनस 1 इट इज 3 एंड I माइनस 6I, सो इट इज माइनस 5I। और जब इसका मॉड लेंगे तो कितना होगा? इट इज अंडर रूट 3 स्क्वायर दैट इज 9, 5 स्क्वायर दैट इज 25, विच कम्स आउट टू बी रूट 34। लेट अस फाइंड आउट अनदर डिस्टेंस दैट इज QR। QR, अब ये पेयर हो गया, कैसे भी माइनस करिए आप, 1 माइनस माइनस प्लस 4, सो दैट इज 5 एंड दिस 6I माइनस 3I, सो इट इज 3I, ठीक है। इसका अगर आप मॉड लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, हो गया अंडर रूट 34। लेट अस फाइंड आउट RS। RS कितना है? इट इज मॉड ऑफ -4 माइनस माइनस प्लस 1, सो इट इज -3।
and 3i minus minus plus 2i, so it is 5i, which comes out to be under root minus 3 का square 9, 5 का square 25, which is nothing but under root 34. Again next, that is SP, so it is mod of SP, so 4 minus minus plus 1, so it is 5, and I minus minus plus 2i, so it is 3i. It is nothing but under root 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर होगा 9, which is nothing but under root 34. So these are the four distances. So all the four sides are equal. अब हमारे दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, रेक्टेंगल कट हो गया, पैरेललोग्राम कट हो गया, होगा या तो रोम्बस या तो स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस आपने बताया कि एंगल 90 डिग्री अगर होगा तो स्क्वायर, नहीं होगा तो रोम्बस। लेट अस चेक वेदर द एंगल इज 90 डिग्री और नॉट। अब आप एंगल चेक करने के लिए हम डायगोनल का लेंथ निकालते हैं। डायगोनल कौन सा होगा, देखिए पी क्यू आर एस कंसेक्यूटिव होते हैं, है ना। तो अगर मैं इस तरीके से निकालता हूं, मान लीजिए, ठीक, दिस इज पी क्यू आर एस, किसी भी तरीके से आप लीजिए, तो अब डायगोनल कौन हो जाएगा, पी आर। लेट अस फाइंड आउट लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर। तो पी आर की अगर हम लेंथ निकालते हैं, सो पी आर इज नथिंग बट मॉड ऑफ, अब मैं पी आर ले रहा हूं, ठीक है, पी आर। सो 4 माइनस माइनस प्लस 4, सो इट इज 8, और यहां पर आई माइनस 3i, सो इट इज माइनस 2i, और इसका अगर हम मॉड लेंगे, सो इट इज अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, सो इट इज अंडर रूट 68, ठीक है। नाउ यू ऑब्जर्व दैट, आप कोई भी, अब ये जो एंगल होगा, हम इस एंगल की बात करें, पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर आप लगाते हैं तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से आप देखिए, चेक करिए, पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर आ रहा है क्या। पी एस स्क्वायर मतलब एस पी स्क्वायर कितना है, रूट 34 का स्क्वायर हो जाएगा 34, आर एस वो भी है रूट 34, उसका स्क्वायर होगा 34, which is equal to PR square, PR कितना है, रूट 68, उसका स्क्वायर कितना होगा 68, and this is true, ठीक है। so therefore you can say that angle PSR is 90 degree, and therefore quadrilateral PQRS is a square, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने दो चीजें आपको बताई कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ग्राफिकली अगर आप प्लॉट करेंगे, लेकिन आपको ग्राफिकली प्लॉट करते समय एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, मतलब पॉइंट आपको बराबर से प्लॉट करने पड़ेंगे। आप ये अगर चारों पॉइंट प्लॉट करेंगे, देन ऑल्सो यू विल कम टू नो कि हाँ ये स्क्वायर